Welcome, my dear students. In this session, we'll be taking up questions related to a type of data representation that is known as radar graph, or we can also call it spider chart or spider web chart. Okay, this is like this type of data representation technique. So in this particular chart or graph, we have a polygon-like shape emanating from a center. It could be hexagon, pentagon, or whatever, okay, but it is a polygon-like shape. And on every axis, there is a different variable so this is the center, and let us say okay, this is showing the expenditure of a family. So these will be some variables A, B, C, D, E, and F. And each of them, some expenditure variable, some value must be given. For example, A could be groceries, C could be traveling expenses, and so on, so forth. And the distance from the center decides the corresponding value. So more the distance, more will be the value of that particular variable for that particular year or month or whatever the data is given. So these are the basic things. Now let us start with the questions, और questions में इन बातों को समझते हुए चलते हैं. ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं. And you can connect with me on Telegram at ADITYAKT and join the Telegram group that is CAT-MBA. First question. So the spider chart below provides the information about number of students in thousands in 2 different universities in 6 different years. So there are 2 different universities, JNU in orange and DU in blue, and the data given is for 2012, 13, 14, 15, 16 and 17. For these 6 years, and data points are also given. Question number 1 is, what is the sum in thousands of the number of students in JNU in the year 2016 and number of students in DU in the year 2012 together? Number of students in JNU in the year 2016 में JNU में number of students है 26,000, ठीक है. DU में है 24,000 और JNU में है 26,000, और so this is 26,000 and DU in 2012 कितना है? That is in blue 8,000. This is 8,000. Total आ जाएगा 34,000, but sum in thousands पूछ रहा है, so answer will be 34 only. 26 plus 8, 34, option D. Clear? Okay, next question. Question number 2, what is the difference between number of students in DU in the year 2017 and the number of students in JNU in the year 2014? The number of students in DU in the year 2017 is equal to 20,000, and in JNU in the year 2014 this value is 30,000. So answer will be 30,000 minus 20,000, 10,000. Now the options, option D will be the answer, 10,000. Question number 3, if 30% of the students in JNU in the year 2014 were female and the number of female students has increased by 80% from the year 2013, then what was the number of male students in the JNU in the year 2013? तो डेटा हमें क्या गिवन है? ओके, डेटा क्या गिवन है? एक इस क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन में थोड़ा सा लोचा लग रहा है. एनीवे, टेस्ट कर लेते हैं. 30% ऑफ स्टूडेंट्स इन JNU इन द ईयर 2014 आर फीमेल. 2014 में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना है? 30,000 है. तो 30,000 का 30% विल बी फीमेल्स. तो फीमेल्स विल बी 9,000 इन 2014. और 2013 से 80% का इंक्रीज आया है. 80% कितना होता है? 4/5. तो 4/5 का इंक्रीज आया है. अगर बेस हमारा 5 यूनिट्स था तो 4 यूनिट्स का इंक्रीज आया है.
तो अगर 5x हमारी फीमेल्स थी 2013 में, तो 14 में कितना हो जाएगा, 2014 में 4x का इंक्रीज आएगा, यानी कि 9x हो जाएगा, और 9x इज इक्वल टू 9000। तो डेफिनेटली 2013 में नंबर ऑफ फीमेल्स वर 5000, और टोटल नंबर कितना है, टोटल नंबर है हमारा 20,000। तो नंबर ऑफ मेल्स हो जाएंगे हमारे 20,000 माइनस 5,000 एंड हेंस 15,000। ठीक है, ऑप्शंस थोड़े गड़बड़ दिए हैं, ऑप्शन ई विल बी द आंसर 15,000। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। Question 4. What was the highest percentage increase in the number of students in DU in any of the given year over the previous year? Highest percentage increase in the number of students in DU in any of the given years over the previous year. तो percentage increase कितना है, 8 से this value has increased to 15. So there is a huge increase of 7,000. Base है 8,000 का, so 87.5% का increase है. And clearly this is the highest value, तो यही आंसर होगा अपना. बाकी वैल्यूज क्या है, 15,000 से इंक्रीज है, फिर हमारा 22, 7 का इंक्रीज है, 7 का इंक्रीज है, बट बेस 15 है, बेस 15 है, यानी 7/15 आएगा। ठीक है, 700/15 से परसेंटेज हम निकालेंगे, 46.67 आएगा परसेंटेज, दिस इज मच लेसर देन 87.5। आंसर तो अपना आ चुका है, वैसे ही कैलकुलेट कर रहे हैं। फिर 22 से गए अपन 28 पे, 6 का इंक्रीज आया है, बेस 22 है, यानी कि 3/11, तो 27.27% का इंक्रीज आएगा। फिर 28 से फिर तो डिक्रीज हो रहा है, फिर डिक्रीज हो रहा है, तो क्लियरली दीज आर द 3 ईयर्स जबकि इंक्रीज आ रहा है। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। Question 5 is saying number of students in JNU is how much percent more than number of students in DU in the year when the ratio of number of students in DU and JNU is minimum. Ratio of number of students in DU and JNU is minimum. तो DU upon JNU को हमें करना है क्या, minimum number of students को, this should be minimum. Okay, तो कुछ years में this ratio will be greater than 1, for some years this will be greater than 1, this will be less than 1 for some years. क्योंकि हमें minimum करना है तो हमें less than 1 वाले पे फोकस करना पड़ेगा, और ड्यू ब्लू में है, JNU इज इन ऑरेंज। तो ड्यू का वैल्यू कम कब होगा, जबकि वो सेंटर से ज्यादा पास होगा, सेंटर से ज्यादा पास होगा, इजंट इट सो? तो कौन कौन से ईयर हमारे लिए रेलेवेंट है, दिस ईयर इज रेलेवेंट, दिस ईयर इज रेलेवेंट, दिस ईयर इज रेलेवेंट, इनफैक्ट एवरी ईयर इज रेलेवेंट एक्सेप्ट 2015। और मिनिमम रेशियो कब आ रहा है हमारा, for 2012 this is 8/13, then 15/20, then 22/30, 24/26, which is definitely not the lowest, or 20/30, 20/30। तो लोवेस्ट वैल्यू हमारी कौन सी होगी, 8/13 इज डेफिनेटली लोअर देन 20/30। ठीक है, ऐसा कर सकते हो, दो को कंपैरिजन कराओ, ये तो हमारा पक्का लोवेस्ट नहीं है। 8/13 एंड 20/30 को कंपेयर करना है हमको, 20/30 कैन ऑल्सो बी रिटन एज 2/3। अब जब भी कंपेयर कर रहे हो तो दो फ्रैक्शंस को क्रॉस मल्टीप्लाई करो, और जिसका न्यूमरेटर है उस डायरेक्शन में, उस साइड में उसको लिखो। तो 8 × 3 इज 24, 2 × 13 इज 26, तो 24 इज लेस देन 26 एंड हेंस दिस फ्रैक्शन विल बी लेसर, दिस फ्रैक्शन विल बी लेसर। सिमिलरली 15/20 है और 22/30 है, तो 15/20 यानी 3/4 हो गया, और दिस इज 11/15, अगेन सेम स्टोरी। 3 × 15 इज 45, 4 × 11 इज 44, 45 इज ग्रेटर देन 44, तो लेसर वैल्यू हमारा आ गया फ्रैक्शन का 11/15। तो 22/13 यानी कि 30 यानी 11/15 इज लेस वैल्यू, और 8/13 इज लेस वैल्यू। अब इन दोनों को कंपेयर कराते हैं, 11/15 एंड 8/13, 15 8 120, और दिस इज 143। क्लियरली 120 इज मच लेसर, 8/13 इज मच लेसर। वैसे भी 8/13 में हमारा जो डिफरेंस आ रहा है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, वो आ रहा है 5 यूनिट्स का, और जबकि डिनोमिनेटर इज 13 ओनली, इजंट इट सो? वेरी लो। और 11/15 में 4 का है, जबकि डिनोमिनेटर हमारा ज्यादा बड़ा है वैल्यू, तो क्लियरली 8/13 इज एनीवे मच लेसर। आंसर हमारा क्या आ जाएगा, आंसर 8/13 नहीं, आंसर ये है कि रेशियो ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन DU एंड JNU इज मिनिमम। वो तो हमारा ईयर कौन सा है, 2012, तब रेशियो मिनिमम है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन JNU इज हाउ मच परसेंट मोर देन दैट ऑफ DU इन दैट पर्टिकुलर ईयर। तो इस ईयर में 13,000 है JNU में, 8,000 है DU में, तो JNU में 5,000 ज्यादा है,
बेस है 8000 का, 62.5%, ऑप्शन बी विल बी द आंसर। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, question number 6, for how many years absolute number of girls has decreased in DU if it is known that girls are 45% of the number of students in DU every year for the given 6 years? तो हर एक ईयर में जो गर्ल्स का रेशियो है, गर्ल्स और बॉयज का रेशियो है, दैट इज सेम। गर्ल्स आर 45% ऑफ द टोटल नंबर फॉर एवरी ईयर। तो अगर हर एक ईयर में हमें सारे ईयर्स का डेटा पॉइंट्स तो गिवन है और गर्ल्स फिक्सेटेड है, यानी कि 45% है हर एक ईयर में, तो डेफिनेटली दिस डेटा कैन बी डिटरमाइन, दिस आंसर कैन बी डिटरमाइन। तो कैनॉट बी डिटरमाइन तो आंसर नहीं होगा। वो तब होता जब ऑन एन एवरेज हमें वैल्यू गिवन था कि ऑन एन एवरेज गर्ल्स आर 45%, बट यहाँ पे क्या है, एवरी ईयर गर्ल्स आर 45% ऑफ द टोटल वैल्यू। तो टोटल वैल्यू के कंपेरिजन कर लेते हैं, जो टोटल वैल्यू के लिए आंसर आएगा वही गर्ल्स के लिए भी आंसर आएगा, क्योंकि गर्ल्स एक्चुअली 45% है टोटल वैल्यू का। ठीक है, सो किस किस ईयर्स में एब्सोल्यूट नंबर डिक्रीज हो रहा है फॉर डी यू? तो 8000 है 2012 में। ठीक है, फिर 8 से वैल्यू आ रहा है हमारा 15, तो इंक्रीज आ रहा है, तो ये तो अपना नहीं काम का ईयर हुआ। 15 से 22 अगेन इंक्रीज हुआ है, 22 से 28 अगेन इंक्रीज, 28 से 24 तो यहाँ पे डिक्रीज आया है। ठीक है, डिक्रीज आया है, और फिर 24 से 20 यहाँ पे भी डिक्रीज आया है। अब यहाँ पे गलती देखो क्या हो सकता है कि देन यू कैन सी कि 20 से हो रहा है 8। ठीक है, देन यू कैन सी कि 20 से हो रहा है 8, तो यहाँ पे भी तो डिक्रीज है। बट प्रॉब्लम ये है, जो ध्यान देना है वहाँ पे, कि 2012 से हमने स्टार्ट किया एंड दिस इज 2017। फॉर द कंप्लीशन से 2017 को हम अटैच कर रहे हैं 2012 से। ठीक है, 2017 से टाइम मशीन में जाके 2012 पे टाइम ट्रेवल थोड़ी कर रहे हैं। तो डेटा को 2017 वाले को हमें 2012 से कंपेयर नहीं कराना है डिक्रीज के टाइम पे, बिकॉज 2017 के बाद 2018 आएगा जो कि डेटा में नहीं गिवन है, 2012 नहीं आएगा। इज दैट क्लियर? तो ये एक बेसिक मिस्टेक है जो ऐसे क्वेश्चन में हो सकती है, बिकॉज डेटा पूरा का पूरा हमारा एक सर्कल में है। ठीक है, ऑप्शन ए विल बी द आंसर। क्या इस बात को अप्रिशिएट कर पा रहे हो? ठीक है, क्लियर है बात? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। The following data gives the average monthly income and expenditure of a family. Both values are in thousands over the years. तो हमें इनकम और एक्सपेंडिचर मंथली, एवरेज मंथली इनकम और एक्सपेंडिचर की वैल्यूज गिवन है। क्वेश्चंस करते हैं अकॉर्डिंगली, और इनकम हमारा ब्लू में है, एक्सपेंडिचर इज इन ऑरेंज। In 2008, monthly income of the family successively increased by rupees 1500 per month from January to December. What was the monthly income of the family in the month of January in 2008? तो जनवरी 2008 में वैल्यू क्या रहा होगा, और जनवरी से सक्सेसफुली हर एक मंथ में इंक्रीज कर रहा है 1500 रुपीज पर मंथ से। तो लेट अस अज्यूम कि जनवरी में इनकम वाज इक्वल टू एक्स। तो अगर जनवरी में एक्स था तो फेब में हो जाएगा एक्स प्लस 1500, मार्च में हो जाएगा एक्स प्लस 1500 इंटू 2 एंड सो ऑन। दिसंबर में जाके वैल्यू क्या हो जाएगी, क्योंकि 11 मंथ्स में इंक्रीज कर रहे हैं, क्या है एपी तो बन रहा है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बन रहा है, जिसका कॉमन डिफरेंस कितना है 1500। तो दिसंबर में दिस विल बी एक्स प्लस 1500 इंटू 11, टोटल 12 मंथ्स है तो 11 टाइम्स ऐड होगा। राइट, जनरल टर्म क्या होता है, फर्स्ट टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस इंटू n-1, तो x प्लस 1500 इंटू 11। तो एवरेज वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, क्योंकि हमें एवरेज वैल्यू तो गिवन है, इनकम की एवरेज वैल्यू गिवन है 2008 में, और एवरेज वैल्यू कितना आ रहा है, दैट इज इक्वल टू 30,000। 30,000। ओके, अच्छा एक छोटी सी चीज़ और है, ये जो जीरो मेंशन है, नहीं नहीं एक सेकंड, ये जीरो अपना कहाँ पे है, जीरो तो बिल्कुल अंदर होगा। ठीक है, देन दिस इज 5, 10, 15, 20, 25, 30, हाँ 30,000 ही है। तो ध्यान रखना है कि इनसाइड में जीरो है, यहाँ ये जीरो यहाँ पे दिख रहा है, बट जीरो बिल्कुल सेंटर पे है। दिस वैल्यूज फॉर 5, दिस इज 10, दिस इज 15, दिस इज 20, दिस इज 25, और दिस वन इज 30, देन 35 एंड देन 40। ठीक है, थोड़ा सा वैसे रिप्रेजेंटेशन में उल्टा सीधा हो रहा है, एग्जाम में ऐसा नहीं होगा, एग्जाम में तो क्लियरली प्रॉपर डायग्राम होगा। क्लियर है? ठीक है, सो हमारा एवरेज क्या आ जाएगा, एवरेज आ जाएगा जनवरी प्लस दिसंबर डिवाइड बाई 2, तो x प्लस 150 इंटू 11 and this divided by 2 and this is equal to how much, 30,000। तो 2x प्लस 150 इंटू 11 कितना हो जाएगा, सॉरी 1500 इंटू 11 होगा। हाँ, यहाँ पे एक जीरो कम कर दिया, तो 1500 इंटू 11 विल बी 16,500 and that is equal to 60,000। so 2x is equal to 43,500, so x will be equal to 21,750 rupees, ऑप्शन सी। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन।
Question number 2, if the average income and expenditure in 2013 is 20% more than the income and expenditure in 2012, then average monthly savings in 2013 is what percent more than that in 2008? 2008 से कितना ज़्यादा होगा हमारा एवरेज मंथली सेविंग? ओके, तो 2008 में मंथली सेविंग कितना है हमारा? एवरेज मंथली सेविंग कितना है? दैट इज 15,000. भाई दिस डेटा इज 15, दिस इज 30. 15,000 इज एवरेज मंथली सेविंग. और 2012 में दिस इज इक्वल टू अगेन 15,000 ये. और फिर हमारा 20% से राइज कर रहा है, अगर इनकम भी और एक्सपेंडिचर भी 20% से राइज कर रहा है, तो जो सेविंग्स है वो भी 20% से ही राइज करेगी. भाई इनकम हमारा, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू सेविंग 2012 में. 2013 में इनकम राइज कर रहा है 20% से, यानी 1.2 टाइम्स इनकम हो जाएगा. एक्सपेंडिचर राइज कर रहा है 20%, दोनों सेम परसेंटेज से राइज कर रहे हैं, तो एक्सपेंडिचर हो जाएगा 1.2 एक्सपेंडिचर. तो सेविंग क्या हो जाएगा? न्यू सेविंग एस डैश विल बी इक्वल टू 1.2 कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा इनकम माइनस एक्सपेंडिचर. तो क्लियरली हम 1.2 से डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 20% का इंक्रीज हमारा सेविंग्स में भी आएगा. इज दैट मच क्लियर? क्योंकि दोनों सेम परसेंटेज से राइज कर रहे हैं. अगर डिफरेंट परसेंटेज से राइज कर रहे होते तो फिर हमें मैनुअली दोनों की वैल्यूज को लेके और फिर डिफरेंस लेना होता है. बट यहाँ पे डायरेक्टली हम जो हमारी सेविंग्स आ रही है उसको भी 20% से इंक्रीज कर देंगे और वही हमारा आंसर होगा, क्योंकि दोनों केसेस में सेम वैल्यू आ रहा है. 15,000 20% इंक्रीज करेगा, सो दिस विल बिकम 18,000. 18,000 विल बी एवरेज मंथली सेविंग इन 2013 और 15,000 आई 2008 में, तो देयर इज इंक्रीज ऑफ 3,000 एंड 20% का. ऑप्शन बी आंसर आ जाएगा क्लियरली. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द डिफरेंस इन द अमाउंट ऑफ सेविंग्स ऑफ द ईयर 2011 एंड अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ द ईयर 2012? तो 2011 में सेविंग्स कितना है? सेविंग्स इज इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, यानी कि 10,000. मंथली सेविंग है हमारा 10,000. और 2012 में एक्सपेंडिचर कितना है? दैट इज 5, 10, 15, 20, 25. ठीक है, 5, 10, 15, 20, 25. जहां पे भी कंफ्यूजन हो फटाफट से देख लो इसको. ठीक है, सो दिस इज 25,000. डिफरेंस कितना आ रहा है? डिफरेंस इज ऑफ 15,000. बट 15,000 पर मंथ है, पर मंथ है. एक्चुअल आंसर क्या आएगा? एक्चुअल आंसर वैल्यू 15,000 इंटू 12, यानी कि 1,80,000 रुपीज. क्योंकि क्वेश्चन में मंथली सेविंग नहीं पूछ रहा है, क्वेश्चन में अमाउंट ऑफ सेविंग्स ऑफ द ईयर 2011, अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ द ईयर 2012 पूछ रहा है. तो एक्चुअल आंसर वैल्यू 1,80,000. ऑप्शन डी इज द आंसर. क्लियर है? यहाँ पे गलती ये नहीं करनी है कि ऑप्शन सी को मार्क कर देना. ऑप्शन सी मंथली एवरेज दे रहा है, ठीक है, मंथली डिफरेंस दे रहा है, बट हमें एनुअल डिफरेंस निकालना है, तो 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. क्वेश्चन नंबर 4, if the saving amount of every year is calculated and average saving per year is equal to S, then in how many years saving amount is more than average saving per year? Okay, तो सेविंग अमाउंट हमारे हर एक ईयर के कैलकुलेट करेंगे और फिर एवरेज सेविंग निकालेंगे क्या, सबको ऐड करके, और दैट इज इक्वल टू एक्स. तो कितने ईयर्स में सेविंग अमाउंट हमारा एस से ज्यादा होगा, एवरेज सेविंग से ज्यादा होगा? दैट इज व्हाट द क्वेश्चन इज आस्किंग. अब कैलकुलेट करना है हमको, और क्योंकि हर एक ईयर के लिए डेटा कंसिस्टेंट है, हमें एवरेज मंथली गिवन है, एवरेज मंथली डेटा इज गिवन. ठीक है, सो हम क्या करेंगे कि एवरेज मंथली जो डेटा गिवन है उसी का आइडिया ले लेते हैं, उसी का आइडिया ले लेते हैं. ठीक है, वही सेम जो हमारा मंथ के लिए आंसर आएगा वही ईयर के लिए भी आंसर आएगा. क्या इस बात को अप्रिशिएट कर पा रहे हो? ठीक है, सो हमें मल्टीप्लाई बाई 12 नहीं करना है हर एक केस में, एवरेज लेना है. क्लियरली यहाँ पे डिफरेंस कितना आ रहा है? सेविंग यानी कि इनकम माइनस एक्सपेंडिचर 15,000 है, 15 लिख दिया. और दिस ईयर कितना डिफरेंस आ रहा है? दिस इज 15 प्लस समथिंग, लेट अस से दैट इज इक्वल टू एक्स. ठीक है, तो 15 प्लस एक्स आ गया. वैसे दिस इज रफली 2, ठीक है, 15 प्लस एक्स लिख देते हैं. और यहाँ पे कितना डिफरेंस है? दिस इज 15 प्लस 5, 20 का डिफरेंस आ रहा है, एग्जैक्टली 20 का डिफरेंस आ रहा है. ठीक है, तो दिस इज 20,000. हियर दिस इज 10,000, हियर दिस इज अगेन 15,000. एवरेज क्या आएगा? सम क्या आ रहा है इन सारी की सारी वैल्यूज का? टोटल 5 ईयर्स है, 15 प्लस 15 30, 50, 60, 75 प्लस एक्स, एंड दिस डिवाइड बाई 5 will be equal to 15 plus x by 5. So that is our average value of savings. या s की वैल्यू आ गई. ठीक है, s एक्चुअल में इसका 12 टाइम्स आएगा, 15,000 प्लस x by 5,000 मल्टीप्लाइड बाई 12. बट अब इससे हमें किन ईयर्स में सेविंग्स हमारी ज्यादा हो रही है, बस यही कैलकुलेट करना है. तो डेफिनेटली 15 प्लस एक्स 2009 में सेविंग्स ज्यादा हो रही है 15 प्लस एक्स बाई 5 से. और सेकंड वैल्यू है 20,000, यहाँ पे 2010 में भी सेविंग्स ज्यादा हो रही है. तो देयर आर ओनली 2 ईयर्स जहाँ पे की सेविंग्स ज्यादा है देन द एवरेज सेविंग्स. ऑप्शन बी इज द आंसर. इज दैट क्लियर? ओके, ठीक है.
तो दैट इज ऑल अबाउट दिस सेशन. आई बिलीव सेशन में जो भी क्वेश्चन हमने डिस्कस किए आपको समझ में आएंगे, रेडार चार्ट भी समझ में आएगा. एग्जाम में अगर आ जाएगा तो आप कर लोगे ना, ठीक है. सो प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, इसलिए रेडार एक नए डेटा सेट को इसलिए डिस्कस किया. एक या दो और डेटा सेट हम लोग डिस्कस करेंगे न्यू टाइप के, जो एग्जाम में अगर आ जाए तो बिल्कुल पैनिक नहीं करना है और समझ में आना चाहिए डेटा, क्योंकि डेटा देखना आ रहा है तो बाकी कैलकुलेशन तो सारी वैसी ही होंगी जो बाकी डेटा में होगी, चाहे पाई चार्ट हो या फिर बाकी सब में हो. एक दो जो मिस्टेक हो सकती है वो भी डिस्कस कर ली कि क्योंकि यहाँ पे एक सर्कल फॉर्म होता है, पॉलीगॉन हम कंप्लीट करते हैं, बट यहाँ पे दिस इज डिसजॉइंटेड, सेपरेट है. दिस इज 2012 एंड दिस इज 2008. तो जब भी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर होगा तो ये ध्यान देना है कि यहाँ पे इन दोनों को हम कनेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है. टाइम मशीन में जाके हम टाइम ट्रैवल थोड़ी कर रहे हैं. तो दिस इज डिफरेंट, दिस इज डिफरेंट. ओके, तो अगर सेशन पसंद आया तो उसको लाइक जरूर करना है. अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लेना. और यू कैन कनेक्ट विद मी ऑन टेलीग्राम एट ADITYAKT एंड जॉइन द टेलीग्राम ग्रुप CAT-ZAT MBA. That's all about this session. Bye bye. Take care.